Assalamu alaikum my dear students, very warm welcome to this class. आज हम classification of solids पढ़ेंगे. So अपना पेन उठाइए and take your notebook to note down what we are actually going to discuss today. I hope you are already prepared for this today's class. तो start कर लेते हैं classification of solids से. ये जो solids हैं these can be variously classified. तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो हम लेते हैं अपने क्लास में नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिखा है. This is a classification based on arrangement of particles. क्या है? Classification based on arrangement of particles. तो इस basis पे the base of arrangement of particles we classify solids into two groups. Number 1 crystalline solids and number 2 amorphous solids. तो amorphous solids क्या है, crystalline solids क्या है, इनकी डिटेल्स हम पढ़ने जा रहे हैं. We'll start with the point number 1. ये मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन किया है. तो पहले पॉइंट में crystalline solids में क्या चीज़ होता है, the constituents means atoms, molecules और ions जिसका एक solid बना होगा. Constituents are present in ordered manner throughout the crystal. Constituents are present in an ordered manner throughout the crystal. तो एक डायग्राम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा. This is a crystalline solid. इसमें आप ये जो round circles देख रहे हैं, these are the particles and these particles are arranged in ordered manner. If you go from left to right or if you go from top to bottom, तो दोनों साइड से you will find these particles are in an ordered manner. So these are the characteristics of this is the arrangement of crystalline solids. और उसके अगेंस्ट में this अगर हम एक amorphous solid लेते हैं, amorphous solids there is no regular pattern, there is no regular arrangement of particles that extends throughout the crystal. फिर देख लेते हैं amorphous solids का जो particle arrangement है, you can see there is an order of particles up to this 3, 1, 2 and 3 particles are in order, but 4th particle is not in order. Similarly, if you go from top to bottom, there is no order. Such is the arrangement of particles. ऐसा एक arrangement of particles देखा जाता है amorphous solids में. Now this order in crystalline solids, where you can see the ordered pattern that extends throughout the crystal, this is called as long range order. So we can say crystalline solids have a long range order. You will note down, and amorphous solids में these are having a short range order. तो short range order क्या है, यहाँ पे आपने देख लिया है 3 particles are in ordered pattern. तो इस तरह से छोटे pattern, if there is a regular pattern, it will extend only to a smaller distance. This is called as short range order. Number 2 point पे आ जाइए. ये जो crystalline solids हैं, these have well defined geometries. तो इसका क्या मतलब होगा well defined geometries? इनके जो constituents होते हैं, इनके जो particles जिनके बने होते हैं, these are present in some well defined geometrical shapes like cube for example. यहाँ पे आप इस diagram से यहाँ पे ये crystalline solid जो है, crystalline solid की constituents 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 constituents are present in a cubical fashion. So crystalline solids में जो constituents होते हैं, these are present in some definite geometrical pattern. लेकिन यही चीज़ जो है amorphous solids में नहीं पाई जाती. There is no definite pattern, there is no definite shape of the constituents. Number 3 point, crystalline solids जो होते हैं, these have got a sharp melting point, while as amorphous solids have got a diffused melting points. Amorphous actually has been derived from a Greek word which means no shape. यहाँ पे लिखा है ऊपर, amorphous is a Greek word that actually means no shape. तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो crystalline solids होते हैं, crystalline solids have got a sharp melting point, while as amorphous solids have diffused melting point. Now what does that mean? तो sharp melting point का मतलब ये होता है कि एक solid जो है, एक crystalline solid जो है, it melts at a specific temperature. और ये जो है amorphous solids, these melt over a range of temperature. आपने बटर देखा होगा, इसको कढ़ाई में डाल लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है
उसी के साथ ही मेल्ट भी होता है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता है, दे मेल्ट एट अ सिंगल पर्टिकुलर टेम्परेचर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद दिस हीटिंग कर्व। आई हैव ड्रॉन द हीटिंग कर्व ऑफ दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पे मैं लिखूंगा CS क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दिस इज AS amorphous सॉलिड। तो आप देखते हैं Q इज फॉर एनर्जी और हीट एनर्जी, एंड यहाँ पे दिस Q इज फॉर हीट एनर्जी, एंड यहाँ पे टेम्परेचर T जो है इज टेम्परेचर। जब आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट देते हैं तो यू विल सी इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इन दिस फैशन। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड वी रीच ए पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होने लगा। सपोज करके हमने वो मेल्टिंग पॉइंट इसका लिया है कितना, 150 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्यों जो है बढ़ा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। 150 पे टेम्परेचर जा रहा है जहाँ तक अप टू दिस पॉइंट। किस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक टेम्परेचर 150 ही रहेगा। तो इस पॉइंट तक एक्चुअली हमारा जो सारा सॉलिड है इट गेट्स मेल्टेड, ये सारा फ्यूज हो जाता है यहाँ तक। फिर जब सारा सॉलिड यहाँ पे आ जाता है, सो यू कैन से इट इज सॉलिड हियर, एस फॉर सॉलिड। फिर यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व है, यहाँ पे सॉलिड मेल्ट हो रहा है, सॉलिड मेल्ट हो, तो इसका मतलब ये हो गया सॉलिड के साथ साथ कुछ लिक्विड भी होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड। अब यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट देयर मेल्टिंग इज कंप्लीटेड। अब फिर आप हीट बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा है। तो दिस एक्चुअली लिक्विड यहाँ पे, मैं इसको रिपीट करना चाहूँ, हमने यहाँ से एक सॉलिड लिया, यहाँ पे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हमने टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की, टेम्परेचर सॉरी इसको हमने हीट दिया है। जब हम इसको हीट दे रहे हैं तो इसका जो टेम्परेचर है ये बढ़ता जा रहा है। सो द टेम्परेचर इंक्रीज अराउंड दिस कर्व, ठीक है। तो फिर एक टेम्परेचर आ जाता है जिसको फॉर एग्जाम्पल दिस वन टेम्परेचर इट कॉरस्पॉन्ड्स 150 डिग्री सेल्सियस, ये इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। अब ये टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, दिस टेम्परेचर विल रिमेन सेम अप टू दिस पॉइंट। तो दैट मीन्स हम हीट बढ़ा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, हमारा सॉलिड जो वो मेल्ट हो रहा है, सारी एनर्जी जो लग रही है वो मेल्टिंग प्रोसेस में लग रही है। तो यहाँ पे सारा सॉलिड मेल्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लिक्विड आ जाता है। तो यहाँ से लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, फिर हीट इट अगेन, अब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इन नटशेल द सॉलिड मेल्ट्स एट सिंगल पर्टिकुलर टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक ये सॉलिड था, तो यहाँ से ये लिक्विड सारा बन गया, यहाँ पे हियर इट इज लिक्विड और यहाँ पे ये सॉलिड था। ऐसी एक चीज़ जो है अमॉर्फस सॉलिड में नहीं देखने को मिलती है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे हीट, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड, हीट सॉरी द टेम्परेचर विल गो ऑन इंक्रीजिंग। होप यू अंडरस्टैंड इट। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो यू कैन रिवर्ट टू मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ कंफ्यूजन। तो नंबर 4th पॉइंट इज एनआइसोट्रॉपिक नेचर। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दीज आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो व्हाट डज दैट एनआइसोट्रॉपिक मीन? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इट गेट्स डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, दिस इज अगेन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं, जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं या 12th में आप पढ़ेंगे फिजिक्स में क्या चीज़ है। अगर हम यही कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ये वाली लाइन जो है यहाँ पे along the horizontal plane, इन ये वाली लाइन, तो आप देख रहे हैं सिर्फ ए पार्टिकल्स आ रहे हैं, ए या बी पार्टिकल्स आएंगे अगर यहाँ से मेजर करेंगे। लेकिन अगर आप यही पार्टिकल्स यही प्रॉपर्टी यहाँ से मेजर करेंगे, तो व्हेन यू मेजर दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस डायरेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमारे पहले पार्टिकल ए आता है, फिर पार्टिकल बी आता है, फिर पार्टिकल ए आता है। दिस विल गेट रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड रिपीटेड। ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो दो पार्टिकल्स का बना होता है, ए एंड बी, ए बी, यहाँ पे फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। It will get repeated. If we measure some physical properties in different directions, it has got different values. क्यों? Different directions में different particles होते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ए मिलेगा, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में आते हैं तो ए बी मिलेगा। तो पार्टिकल्स आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जब यहाँ सिर्फ ए आ रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी का एक वैल्यू मिल रहा है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं लाइक दिस, तो दो डिफरेंट पार्टिकल्स, पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी, इट विल रिपीट।
तो ए की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, बी की अपनी प्रॉपर्टीज होती है. इन द एंड वी हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस. Hope you will understand it. If you have any confusion, revert me back in the WhatsApp group. I will clear it there. तो लेकिन अब जो बात यही प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, amorphous solid, these are isotropic. इसका मतलब ये हो गया जो फिजिकल प्रॉपर्टी आप किसी भी डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इसका वैल्यू जो है सेम होगा. तो इसका रीजन ये क्या है? Its reason is that because the particles are randomly distributed. So when we move in any direction, we are actually moving from the average of the particles. यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल बना सकते हैं एक, we can make an amorphous solid. यहाँ पे AB को हम we will put some dots here. अगर आप यहाँ से जाएंगे या यहाँ से जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ से भी एवरेज ऑफ ए एंड बी मिलेगा, यहाँ से भी एवरेज ऑफ ए एंड बी मिलेगा. लेकिन यही हालत क्रिस्टलाइन में नहीं थी. यहाँ पे सिर्फ आपको एक पार्टिकल्स मिलते थे इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में दूसरे किस्म के पार्टिकल्स मिलते थे. एग्जाम्पल्स में आपको याद रखना है NaCl, KCl, सम आयनिक सॉलिड्स, डायमंड एटसेट्रा. तो इसकी जो examples है amorphous solids में आपको glass is the best example that we can remember as amorphous solids. These amorphous solids are also called as sometimes supercooled liquids. Sometimes amorphous solids are called as supercooled liquids. SC supercooled, SL supercooled liquids. तो supercooled liquid क्या होता है? Actually for example वाटर की एग्जाम्पल लीजिए, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस है. कोई भी लिक्विड जिसको हम अपने फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे लाते हैं विदाउट allowing it to freeze, यानी 0 से नीचे आप आएंगे तो वाटर का आइस बनेगा. लेकिन किसी प्रोसीजर से अगर आप इस तरह का काम कर लेते हैं कि वाटर को 0 से नीचे लाते हैं बट इट डज नॉट फ्रीज, दैट लिक्विड इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स. ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स इजीली सॉलिड्स में तब्दील हो जाते हैं. इफ वी पुट सम ग्रेन मीन्स कोई दाना जिससे वो सॉलिड बन सकता है. इट्स अ सेपरेट प्रोसेस दैट वी विल स्टडी व्हाट इज दिस ग्रेनिंग एक्स्ट्रा. तो ऐसे लिक्विड्स को हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव a glass in your room, जो खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं, आफ्टर 5 or 10 years इनका जो निचला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा मोटा बन जाता है कंपेयर टू द अपर पार्ट. इसका रीजन क्या है? बिकॉज ये जो शीशा इट्स एक्चुअली लाइक ए सुपर कूल्ड लिक्विड, ये आहिस्ता आहिस्ता बहने लगता है, ग्रेविटी की वजह से थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगता है. तो हमारे शीशे का जो निचले वाला लोअर पोर्शंस होते हैं, these are usually thicker after a period of time. So this is an example of amorphous solid. Hope this will suffice you. Fi amanillah.